Yes. So these were the topics of last our lecture. How to reduce a block diagram to find the transfer function of the system. So for that we learn some techniques. Series, block in series will be multiplied, block in parallel will be added. How to move a summing point left or right to a block. How to move a pick off point left to right of a block. Okay. Now, emulating the feedback loop. See, this is the same one which we are discussing earlier. That was your transfer function of the closed loop system. So this is just like a transfer function of a closed loop system. This is a closed loop. This is a closed loop, and this will be reduced. This complete system or complete diagram will be reduced in a single block with G upon 1 plus GH, like this, like this. This is the closed loop system having a forward path GS and feedback path HS, and the transfer function of this system will be GS upon 1 plus GS or we can say G upon 1 plus GH. H is represent here the Laplace domain, that your GS or HS are in Laplace form. So this is how we eliminate a feedback loop in a single block diagram. If the forward path is something G, it can be G, it can be G1 into G2, it can be G1 into G2 plus G3, and the feedback path H. This feedback path will also can be H1 into H2 or H1 plus H2, anything. So that will be G upon 1 plus GH. Whatever the value will of the G and H will be placed in place of G and H in this form. If H is 1, this is called unity feedback, where the H value of the feedback is 1 only, or there is no a particular feedback value in the closed loop. Then we call the system is as a system act as a unity feedback system. The feedback is unity, so that H will be replaced by 1 here, so G upon 1 plus G. Okay. Now swapping the two adjacent summing point. If we swap two summing points in a single, or we have to, we can also join this summing point, or we can also replace these summing point with each other. So if we are having a summing point, this plus minus a, or a b summing point, this is also plus minus, that is b, we can just replace it with each other without any modification. So these can be replaced with each other without any modification. This is the last rule which we have to learn for the block diagram reduction technique. Okay. So now let's see one example how to use this block diagram reduction technique in. Yes. So we were here. Now let's see an example how to reduce how to use the block diagram reduction technique to find the transfer function of this typical block diagram. So this is a block diagram of any system. You can say it is a block diagram of any industrial application, which is making the medicines, which is filling the bottle, or which is it's all. We can also say it's a block diagram of some home equipment, where these G1, G2, G3 are. Let me take my pen. So where these G1, G2, G3, G4s are some controllers or plants, and these H1 and H2s are feedback system, and there is a unity feedback also here. This is a unity feedback system. So can anyone help कि हम कैसे कैसे इसमें लगाएंगे अपना ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक? सबसे पहले कौन सी इसमें टेक्निक लगेगी? कैन एनीवन हेल्प?
एनीवन हैविंग एनी आइडिया कि हम कैसे इसमें लगा सकते हैं? आई एम नॉट सेइंग कि आपको आना चाहिए, अभी तो आपने कोई एग्जांपल किया नहीं है, लेकिन कोई आइडिया दे सकता है कि सर किसको हम पहले मूव करेंगे, या कौन सा मल्टीप्लाई हो सकता है, या कौन सा एडअप हो सकता है बाय यूजिंग दीज 5 7 रूल्स? एनीवन? यस, हेलो। जस्ट ट्राई कि हम इसमें से किसको पहले रिड्यूस कर सकते हैं, क्या कौन से ब्लॉक्स जो है वो सीरीज में या पैरेलल में हो सकते हैं, और उनके बीच में क्या दिक्कत है कि उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा पहले। एनीवन हैविंग एनी आइडिया? G1 and H1, ओके। और कोई अक्षित? यस, आलोक, ठीक है, वी विल डिस्कस G1 एंड H1। अक्षित और G2 एंड G3, राइट राइट। G2 और G3 को ये कैसे हैं? ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? क्या हो सकता है ये? तो G2 एंड G3 आर इन सीरीज। सी पैरेलल में तो G4 है। See, this is the rule. This is cascade. If yes, yes, बोलो बोलो। ठीक है। ओके, कोई नहीं, ये दूर हो जाएगा कंफ्यूजन आपका, कोई नहीं, एटलीस्ट गुड ट्राई। सो एनीवन एल्स? चलो कोई नहीं, देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, आप थोड़ा इस एग्जांपल को सब लोग, मैं चाहता हूँ थोड़ा ध्यान से देखें। सो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? सी, अमन का कहना सही था अप्रोक्सीमेट कि G1 G2 और G3 जो हैं ये दीज आर इन कैस्केड, ओके, नॉट इन पैरेलल। अमन, बस ये गलती थी आपकी। ये देखो, अगर एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में है, देन दीज आर इन कैस्केड, ओके। दिस इज इन पैरेलल। तो अगर मैं कंपेयर करूं सेम इसको यहाँ से, तो ये दोनों, इसका आउटपुट इसके इनपुट में है, सो दीज आर इन सीरीज और कैस्केड, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बट हमारे इन दोनों के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्या है कि ये जो टेक ऑफ पॉइंट है आपका बीच में, ठीक है, ये दिस टेक ऑफ पॉइंट ये आ रहा है, जब तक ये आ रहा है हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी टेक ऑफ पॉइंट या इस तरह का समिंग पॉइंट है, देन वी कैन नॉट मल्टीप्लाई इट डायरेक्टली। वी हैव टू रिमूव दिस समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट। आइदर हम इसको इधर ले जाएं, आइदर हम इसको इधर ले जाएं, ठीक है। नाउ वन स्टेप आगे का सोचते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये दोनों, इसको मैं लेट्स सपोज इधर ले जाता हूँ, ठीक है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, लेट्स सी लाइक दिस। अगर मैं इस पॉइंट को मैं इधर इस ब्लॉक के आगे लेके जा रहा हूँ, तो इस ब्लॉक की वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे, लेकिन पहले देखते हैं अगर मैं इसको आगे ले जाता हूँ, तो ये दोनों, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। दिस विल बी लाइक, ये वाला जो पॉइंट है, ये लाइन यहाँ से ना होके, ये लाइन यहाँ से कट हो जाएगी और ये लाइन यहाँ हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से लाइन हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से आगे हो जाएगी, ये लाइन हट जाएगी यार। तो ये these two G2 एंड G3 विल बी इन सीरीज, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसको हटा के एक ब्लॉक आ जाएगा यहाँ पे G2 और G3 की जगह, या जिसकी वैल्यू हो जाएगी G2 इंटू G3, एक वन ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक। अब ये ब्लॉक और ये G4 ब्लॉक, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों एड अप हो रहे हैं आगे आगे, ठीक है। फ्रॉम दिस रूल, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, आगे आके एड अप हो रहे हैं। तो अब जब ये मेरा पॉइंट यहाँ पे मूव हो गया, लेकिन ये दोनों पैरेलल होने के लिए अगेन ये पॉइंट मुझे बीच में डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ वापस, मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं इसको इधर मूव करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर मूव करा दूंगा जब इसे, तो ये मेरा कुछ इस तरह से मूव हो जाएगा। लेट्स से कि दिस लाइन विल बी मूव्ड हियर, ठीक है, दिस विल बी द न्यू लाइन। ये है ही नहीं, ये है नहीं,
ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये है नहीं, जब यहाँ पे ये खत्म हो गई, यहाँ से ये दोनों हमारे सीरीज में हो गए, इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, आई विल राइट G2 इंटू G3 रहे, देन ये कंप्लीट G2 इंटू G3 विल बी पैरेलल विद दिस G4, इनके बीच में भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा। लेट्स सी आवर नेक्स्ट दिस, so we can remove this, so by applying the rule that moving pick off point or take off point ahead of a block, ठीक है, ahead of a block, ये इस पॉइंट को यहाँ से हटा के मैंने इधर मूव करा दिया, इस पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं इसको इधर पहले मूव कराता हूँ ahead of a block, तब मैं इस ब्लॉक के पहले मूव कराया मैंने, then we have to multiply the feedback element or take off point with the block value this G2, तो हमें G2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ दिस, मूविंग ए पिक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ अ ब्लॉक, तो इसको मैंने इधर मूव कराया, तो मैंने क्या किया, इस पिक ऑफ पॉइंट में एक सेम G की वैल्यू से, जो वैल्यू ये G थी, उसी से यहाँ मल्टीप्लाई किया। नाउ शीट मैंने क्या किया, इस G पॉइंट को मैंने इधर मूव कराया, तो इस पॉइंट को जब मैंने इधर मूव कराया, तो जिस G2 की वैल्यू से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया सेम, ठीक है। जब मैंने इसको यहाँ मूव करा दिया, let me clear all this, जब मैंने इसको यहाँ मूव करा दिया, ये दोनों मेरे सीरीज में हो गए, G2 इंटू G3 हो गया, देन ये इसके पैरेलल में हो गया G4, तो द एलिमिनेटिंग लूप विल बी G4 दिस G4 प्लस दिस G2 इंटू G3। लेट्स सी हाउ, सो अब हुआ क्या, देखो ध्यान से देखो, ये जो था G2 इंटू G3, इसको मूव करा दिया इधर, जब इसको मूव करा दिया तो G2 एक यहाँ पे ब्लॉक में आ गया, ठीक है। देन G2 इंटू G3 हो गया, और G2 G4 उसके साथ ऐड हो गया, ये लेट मी क्लियर ऑल दिस, ठीक है। ये पूरा ब्लॉक जो ये सर्किल है, ये पूरा ब्लॉक G2 इंटू G3 प्लस G4 इसके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दिस ब्लॉक विल बी G4 प्लस G2 इंटू G3, ठीक है। तो पूरा ब्लॉक, वो जो टेक ऑफ पॉइंट था जो यहाँ पे था A पे, वो हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो ये जब यहाँ लाए थे तो इस G2 से मल्टीप्लाई हो गया था, तो ये G2 हमने H1 के साथ लिख दिया, ये G2 H1 अगेन सीरीज में है, तो इन दोनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई होके वी कैन राइट इट G1 इंटू G2, सॉरी H1 इंटू G2, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया। सो दिस इज दी वन स्टेप रिडक्शन, जिसमें पैरेलल और कैस्केड दोनों सॉल्व हो गए। नाउ अगेन, ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये दिस इज नॉट ए लाइन, ये स्लाइड की लाइन है, ठीक। नाउ अब आप देखो, देन अगेन आप एक चीज देखो कि ये जो है दिस इज कंप्लीट फॉर्मिंग ए क्लोज लूप नाउ, ठीक है। एक क्लोज लूप ये बनना है आपका, ठीक है, एक क्लोज लूप आपका ये बनना है, ठीक है, एक क्लोज लूप ये बनना है, ये वाला बड़ा होगा दिस वन। So to solve this bigger closed loop, we have to solve these these small closed loop first. तो हम क्या करते हैं, हम पहले स्मॉल क्लोज लूप जो है उनको सॉल्व करते हैं। अब कोई सीरीज और पैरेलल में कोई नहीं बचा है, हाँ yes. अब नथिंग इज इन सीरीज और पैरेलल, ठीक है, जो सीरीज और पैरेलल में थे G2, G3 एंड G4, उनको हमने सॉल्व कर लिया। नाउ नथिंग इज इन सीरीज और पैरेलल, नाउ दे आर क्लोज लूप ओनली इन द सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, पहले इस क्लोज लूप को सॉल्व करते हैं, दिस वन, लेट्स टेक दिस क्लोज लूप, ये वाला जिसमें S2 आ रहा है, यहाँ पे जो खत्म हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है इधर, और इधर जाके इधर खत्म हो रहा है। फॉर दिस एक हर्डल है इसके बीच में कि ये अगेन दिस टेक ऑफ पॉइंट, ये इसके बीच में है, तो क्लोज लूप हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, क्लोज लूप लेट्स सी दिस फॉर्म, इस फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें कोई भी हर्डल नहीं है, सीधे एक फॉरवर्ड पाथ का गेन है, क्लोज लूप का गेन है, बीच में कोई ऐसे टेक ऑफ पॉइंट या कोई एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक हर्डल है हमारे कि इसमें ये वाला टेक ऑफ पॉइंट एक अवेलेबल है यहाँ पे, ये वाला, इसको मूव कराना है, अगेन मैं इसको मूव करा दूँ फिर वापस वहीं पे, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग दिस टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ए ब्लॉक, ठीक है, और behind a block. Now this rule will apply. Takeoff point is moved after a block or ahead of a block. तो जब हम बाद में मूव कराते हैं, then what will do, हम इस ब्लॉक की वैल्यू से उसे डिवाइड कर देते हैं
टेक ऑफ पॉइंट को, ठीक है। तो टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू को, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसको हम इस जी की, जो भी यहाँ ब्लॉक की कंप्लीट वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो लेट्स सी, तो मुझे इसको, इस टेक ऑफ पॉइंट को इधर मूव कराना है, तो इस ब्लॉक की कंप्लीट वैल्यू से मैं इस फीडबैक पाथ को डिवाइड कर दूंगा। फीडबैक पाथ कौन सा, ये वाला, दिस वन, ठीक है। इसको मुझे इधर मूव कराना, तो इसकी वैल्यू से मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा, ऐसे इसे यहाँ डिवाइड बाय दिस G4 प्लस G2 इंटू G3, ओके, G2 इंटू, ठीक। तो अब ये देखो, ये इस तरह से हो गया, ये वाला मेरी लाइन हट, ये वाली जो लाइन थी ये हट गई, ये वाली लाइन हट गई, यहाँ पे ये लाइन नहीं है, और ये मेरा शिफ्ट हो गया इधर, और इसको मैंने कर दिया 1/G। जी इस समय ये कंप्लीट जी है, 1/, मैंने इस ब्लॉक के राइट में मूव कराया है, तो इस 1/, दिस कंप्लीट ब्लॉक, 1/, दिस कंप्लीट ब्लॉक, ओके। So I am moving the takeoff point after this takeoff point after this block. So I have to divide with the takeoff point with the value of this block. तो मैंने क्या किया, इस takeoff point को यहाँ से हटा दिया, देखो ये कनेक्शन यहाँ से इसका डिसलोकेट आ रहा है, this is not connected, ये हट गया कनेक्शन, now this is connected to this one, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने मूव करा दिया इधर, एंड इस ब्लॉक की कंप्लीट वैल्यू से इस टेक ऑफ पॉइंट के पाथ में डिवाइड कर दिया 1/this। सो नाउ नाउ लेट्स सी, जब मैंने इसे मूव कराया आगे, ठीक है, तो ये पॉइंट हट गया, ये हट गया यहाँ से, दिस इज नॉट, ठीक है, ये लाइन आपकी हट गई, नाउ दिस इज लाइक दिस, ठीक है। अब क्या किया मैंने, देन दिस इज ए कंप्लीट क्लोज लूप नाउ, दिस इज ए कंप्लीट क्लोज लूप नाउ, विच वन, दिस, ध्यान से देखें इसे, दिस वन इज ए कंप्लीट क्लोज लूप नाउ, नथिंग इज इन बिटवीन दिस, कोई टेक ऑफ पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, एक फॉरवर्ड पाथ गेन है जी है जिसकी वैल्यू ये है, एक फीडबैक पाथ है जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो दिस इज ए कंप्लीट क्लोज लूप नाउ, ठीक है, कोई भी इसमें से कुछ नहीं है, ये मेरा मूव कर गया इधर, ठीक। तो कंप्लीट क्लोज लूप के लिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था, G अपॉन 1 प्लस GH। अगर एक कंप्लीट क्लोज लूप है, देन ट्रांसफॉर्मेशन विल बी ऑफ दैट क्लोज लूप इज G अपॉन 1 प्लस GH। इस केस में, यहाँ इस केस में आपकी G की वैल्यू है G4 प्लस G2 इंटू G3, और फीडबैक पाथ की वैल्यू है S2। सो दिस जो मैंने अनसर्कल किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो ये सर्किल हुआ है, इस पूरे पार्ट क्लोज लूप की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी लाइक, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें, दिस विल बी जी की वैल्यू है G4 प्लस G2 इंटू G3, ठीक है, दिस इज G अपॉन 1 प्लस GH, और GH की वैल्यू यानी इट विल बी G4 प्लस G की वैल्यू है यहाँ पे G4 प्लस G2 इंटू G3, मतलब फॉरवर्ड पाथ गेन, वी कैन से फॉरवर्ड पाथ अपॉन 1 प्लस फॉरवर्ड पाथ गेन इंटू फीडबैक पाथ H2। तो इस पूरे सर्किल की जगह रिप्लेस हो जाएगा ये सिंगल ब्लॉक, ये एक क्लोज लूप। So this will be replaced by G4 G plus G2 G3 upon 1 plus S2 G4 plus G2 G3, ठीक है। तो ये आपका पूरा, ये वाला पूरा क्लोज लूप सिस्टम जो सर्किल हुआ है यहाँ पे, that will be, this complete closed loop system will be replaced by this closed loop formula G upon 1 plus H, ठीक है। तो ये 1 अपॉन G4 प्लस G2 आर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो गई, इसकी जगह हमने लिख दिया H1 G2, दिस H1 G2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस G4 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G4 G2 G3, ठीक है। तो आपके दो चीजें इसमें हो गई, एक वो क्लोज लूप पार्ट सॉल्व हो गया, देन आपका एक तो हमें इस ये वाला जो पार्ट था,
इस टेक ऑफ पॉइंट को मूव करा दिया हमने आफ्टर दी ब्लॉक, देन इस सर्किल के अंदर जो क्लोज लूप बना उस क्लोज लूप को हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके ये आ गया उसकी जगह कंप्लीट। नाउ अगेन लेट्स जस्ट होल्ड ऑन। दिव्या, 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 ये भगा के मम्मा क्या कर रही है? अरे भगाना है चल एंड इसको। सो नाउ अब क्या हुआ? यस, तो अब क्या हुआ? then this G1 and this G1 block and this block now again in series, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इस पूरे की इसमें मल्टीप्लाई करके G1 into that complete one, G1 into that complete one, इन दोनों की मल्टीप्लाई करती, then again ये पूरा कंप्लीट कहाँ से आया? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। आई कैन राइट इट कि यहाँ मैं G1 को हटा के यहाँ G1 लिख देता हूँ, G1, then this is also forming a closed loop again. This one is also forming a closed loop again, where the value of forward path of, we can say, G is this. This is the value of G for the closed loop formula, and the value of feedback path for H will be this. So again applying G upon 1 plus GH, G upon 1 plus GH, then this will be given you this complete structure. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, G1 एंड दिस विल बी ए फॉरवर्ड पाथ गेन G कंप्लीट एंड H कंप्लीट। जब आप इनको अगेन सॉल्व करोगे, G की वैल्यू ये पूरी कंप्लीट रखोगे और H की वैल्यू ये कंप्लीट रखोगे, देन इट विल गिव यू G अपॉन 1 प्लस GH और दैट विल गिव यू दिस। Okay, then again let's see this, after removing this closed loop, let's clear all this. After removing this closed loop, there will another closed loop remaining, that will be with this unity field, this one, with unity feedback. So what it did, again the value of the closed, for the closed loop formula, this will be the value of G, this complete will be the value of G, and the value of H in this case will be 1 only. So again by using that formula, G upon 1 plus GH, where the value of H will be 1 and G value of G will be this complete, we will getting this final transfer function, that is your transfer function of the block diagram. Okay. So this is the process. This is the process how you can reduce the block diagram. So I want that आप complete इस process को एक बार देखें. I'll upload this video also, this PPT also by today. ठीक है, आप complete इस process को देखें, इस question को solve करने की खुद कोशिश करें. Then we will solve some other question of tomorrow. ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक के लिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो किसी को?